बच्चों, आज हम लोग नई चीज़ पे शुरुआत करने जा रहे हैं आपके लिए। और ये है एक्सपेरिमेंट्स। हम समझ रहे हैं कि बहुत देर हो रहा है सेशन में, वैसे भी हम लोग काफ़ी पीछे हो चुके हैं। और इस पार्ट में कोई किसी तरह का हम लोगों के पास ना वीडियो है, ना तो न ही कोई आगे कोई इनिशिएटिव लिया गया। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस में है, 12th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस में जो पहला जो एक्सपेरिमेंट है, दैट एक्सपेरिमेंट इज व्हाट टू डिटरमिन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ गिवन वायर। हियर written in short, resistance to determine resistance per centimeter. Okay, so per centimeter of what? Per centimeter of a given wire. So certainly a wire of uniform cross section will be given to you, and you have to find out resistance per centimeter. And first you have to find out resistance of whole wire, and this is done by plotting VI graph. And as you have done in 10th class, I think you might have plotted this VI graph in 10th class. Okay, so this is very simple experiment. Ohm's law you know very well, and to determine resistance required circuit is what? Okay, you are given a wire here, or resistor, or conductor, you can say generally. What is Ohm's law? When potential difference is applied across a resistor, current flows, and strength of current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it, given that temperature is constant, cross section is uniform. Then here you are given a resistor. It has resistance R. So you have to apply potential difference. Okay, nothing is stated in this part. What are other components are required? But resistance, source means potential difference. Potential difference का source क्या होता है? आप सेल या बैटरी होगा। सो आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट डेफिनेटली करंट फ्लो करेगी। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं? ग्राफ प्लॉट करना है, V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। सो V will be varied and resulting current will be observed and it will be recorded. So as this, so there is no variac is used, no variable supply is used here. So you have to do what? You have to connect a rheostat. Okay, so a rheostat is connected here. Okay, a variable resistance. So where do you record current? From where do you record current? Where do you see the potential difference applied? Definitely measuring devices are required here. So measuring devices are what? किसके क्रॉस आपको लगाना है वोल्टेज? R के क्रॉस. So R के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? And this potential difference is measured with the help of voltmeter, and you have to keep in mind polarity of this voltmeter. Okay, पॉजिटिव टर्मिनल से आपको वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, ये उसमें दिया होता है और उसमें पोलैरिटी फिक्स होती है उसकी, और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है। इस रजिस्टर में के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, एंड these quantities are related according to this relation. V equals Ri. So R is resistance, I is current flowing through the resistor. Okay, and V is applied potential difference. So these things are required here. So another thing you can you may connect a switch. Okay, so switch is there, and current measuring device still it is not connected. So a current measuring device, and this is a meter or milliammeter, you can connect. So this is whole circuit to determine unknown resistance with the help of Ohm's law. So required components, or you can say apparatus required or material required, आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? रेजिस्टेंस जो भी होगा,
एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो वायर के फॉर्म में रेजिस्टेंस, अब ये क्या हो जाएगा, तो देखिए, सो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल्स आर apparatus। हम लोग जनरली केमिस्ट्री में मटेरियल्स ज़्यादा बोलते हैं, आपको फिजिक्स में आप apparatus बोलिए, यहाँ भी कभी कभी मटेरियल्स की जरूरत होती रहती है, लेकिन यहाँ हम लोग apparatus ज़्यादा लिखते हैं। ओके, सो apparatus, so what are apparatus they required, so resistance wire, one thing, resistance wire, okay, आप वैसे अमीटर, मिली अमीटर, मिली अमीटर ऐसे, और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, यानी रेंजेस भी हम लिख लेते हैं कि मिली अमीटर के रेंज क्या होंगे। तो रेंज मिली अमीटर का रेंज क्या होगा, आप 0 to 500 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। वोल्ट मीटर, ये इसकी रेंज क्या 0 to 3 वोल्ट सफिशिएंट है अगर आप स्टडी करना चाहते हैं। रियोस्टेट, रियोस्टेट, ओके, सप्लाई कोई, सप्लाई, अब बैटरी या बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है, बैटरी एलिमिनेटर, ओके, और फिर स्विच, स्विच और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर्स। तो ये मटेरियल चाहिए आपको, ये सब मटेरियल मिलते ही पहले तो थियरीज में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको थियरीज क्या दी है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखते हैं, डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो थियरीज पहले मालूम होनी चाहिए। क्या है यहाँ पर, यहाँ सिंपल फार्मूला यूज्ड ही काफ़ी होता है। आपको यहाँ डिटेल में थियरी को कोई डिराइव नहीं करना है कहीं से, बस फार्मूला यूज लिख देंगे, काम हो जाएगा। जानते रहिए उसमें जो भी फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं, आपको ये जानना जरूरी है। तो थियरी या फार्मूला यूज्ड, थियरी और हियर फार्मूला यूज्ड, okay? So theory is based on what? You know, resistance is directly proportional to length. One thing is there. So resistance, what? It is directly proportional to length of conductor. Length of conductor. ये कब होता है? इसमें क्या कंसीडर किया गया कि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो ये हो जाए, और साथ में क्या आप यूज कर रहे हैं, ये रिलेशन आता कहां से, R इक्वल्स रो ए बाई एल, सॉरी एल बाई ए, ये आप जानते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से आती है। और साथ में अब इसके बाद और क्या रह गया, आप V इक्वल्स आई आर, जो आपको रिकॉर्ड करना है यहाँ पर, जिनकी हेल्प लेनी है, आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जा रहे हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग करंट है, करंट नोट करते जा रहे हैं, तो V इक्वल्स आई आर वो यूज होना है। एंड ओके, एंड V इक्वल्स आर आई, सो ये आपको यूज करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप जो टेबल बनाते हैं, वैसे बहुत आसान चीज़ है, जो 10th में किया था वही काम करना है ना। आप सिंगल वायर यूज कर सकते हैं, मोर देन 1 पीसेस यूज कर सकते हैं। एक मन में से एक ही लेंथ का वायर दिया, मान लेते हैं 1 मीटर आपको वायर मिल गया, उसी के रेजिस्टेंस आप बार बार कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिन करते हैं, उसी के लिए आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, VI ग्राफ। या हो सकता है कि आप 1 2 3 वायर ले लें, आप उनमें बारी बारी सबके लिए रिकॉर्ड करें डिटेल थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा सा प्रिसीजन और बढ़ जाता है मेजरमेंट आपके डिटर्मिनेशन का। और अच्छा ये होता है कि जो हीटिंग इफेक्ट है
उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है अगर कई पीसेस ले लें, कोई 1 मीटर का है, कोई 2 मीटर का है, कोई 1.5 का है, कोई हाफ मीटर का है। तो इन सबसे 2-3 स्टेप में आप कर सकते हैं। सबके लिए रिकॉर्ड करिए, सबके लिए ग्राफ प्लॉट करिए। सबके रेजिस्टेंस अलग होंगे क्योंकि अलग अलग लेंथ है, लेकिन क्या करेंगे, सबके रेजिस्टेंस अलग हैं, लेंथ अलग है, सबसे रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर हर स्टेप पे सभी के लिए फाइंड आउट करिए। आपने 2 मीटर का लिया हुआ है, वहाँ भी रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कैलकुलेट करिए। आप हाफ मीटर का लिए हुए हैं, वहाँ भी रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कैलकुलेट करिए। अब सबके रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर का फिर से मीन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा एक और कह सकते हैं ज़्यादा करेक्ट आपको आपके पास वैल्यू मिलेगी। तो टेबल में आप समझ सकते हैं बस 2 ही चीज़ें हैं, एक V और I। तो और R कैलकुलेट ही करना है, और V के कितनी वैल्यू लेंगे आप, हो सकता है ठीक है, जो अप्लाई कर रहे हैं बदल सकते हैं, हाफ वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। क्योंकि VI ग्राफ में स्ट्रेट होता है, जो लीनियर रिलेशन है, तो लीनियर रिलेशन है तो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा तो 2 ही 3 वैल्यूज काफ़ी हैं। लेकिन हम किस लिए और ज़्यादा वैल्यूज प्रीफर करते हैं, ऑब्जर्वेशन प्रीफर करते हैं कि हमें हमारे देखने में कुछ एरर हो सकती है, उसके जो डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस है, उसके रेंज में कोई दिक्कत हो सकती है कि हायर करंट या हायर वोल्टेजेस पर कुछ डेविएशन तो नहीं शो कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए भले ही स्ट्रेट लाइन आ रहा है आपका ग्राफ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही वैल्यूज ले लें या ग्राफ कीजिए। आप प्लॉट करना है तो 3, 4, 5 वैल्यूज लीजिए। तो हाफ वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, आपका जो वोल्ट मीटर है वो 3 वोल्ट का है, तो आप जा सकते हैं उस लेवल तक, आपकी मर्जी। और छोटी भी वैल्यूज अगर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की लेनी है आप ले सकते हैं कि 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, ऐसा करके आप देख सकते हैं ग्राफ। तो इन चीज़ों में हम जो आप टेबल बनाएंगे, मैं उसको थोड़ा जल्दी से बना लेता हूँ। उससे पहले क्या करना पड़ता है, आपको रिकॉर्ड नोट ये करना पड़ता है कि जो आपने डिवाइसेस यूज़ किया है, वोल्ट मीटर, अमीटर, वो कितने लीस्ट, उसका लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट मैं समझता हूँ तो आपको मालूम होगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो आप ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट काउंट जो आप कर सकते हैं उस डिवाइस से, वो लीस्ट काउंट है, यानी सबसे छोटे डिवीजन की मेजरमेंट कितनी है उस डिवाइस में, तो वो वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। रेंज रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले यही कि आपको चाहिए क्या क्या, अपरेटस क्लियर होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। पहली बात कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर डिटरमिन करना है, और वो भी क्या करना है, बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन V एंड I। ओके, V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करके तब रेजिस्टेंस डिटरमिन करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, डिफरेंट V की वैल्यूज होंगी, डिफरेंट I की वैल्यूज होंगी। उसके लिए पहले ही आपको तय कर लेना है कि किस रेंज का हम लेंगे। तो रेंज और लीस्ट काउंट और जीरो एरर, ये भी देख लीजिए आपके डिवाइस में जो मिला हुआ है, हो सकता है कि जो इंडिकेटर है जीरो करंट है और वो जीरो नहीं बता रहा है, कुछ 2 और 1 पर या 1 मिली एम्पियर या 10 मिली एम्पियर पर वो मार्क कर रहा है, किसी गड़बड़ी से वो टेढ़ा हो गया है या किसी तरह वो पहुंच गया वहाँ पर, कोई लूज कनेक्शन या कुछ भी हो सकता है। तो पहले ही कर लीजिए ये चीज़ कि जीरो एरर क्या है, यानी नो करंट कंडीशन में भी क्या है, क्या वो कुछ रीडिंग जैसा दे रहा है, क्या रीडिंग एक्चुअली दे नहीं रहा है, मतलब उसका जीरो उसी पर है। तो ये भी नोट करना पड़ता है। तो जब भी आप वहाँ जाएंगे ऑब्जर्वेशन में, तो अपरेटस के बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट होता है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, सो अपरेटस थ्योरी और उसके बाद ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, एक तो क्या हो जाएगा आपका 1 लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर। ओके, ये हो जाएगा रेंज ऑफ अमीटर। इसके बाद जीरो एरर ऑफ अमीटर। ये सब चीजें किसके लिए रिपीट करेंगे, आप वोल्ट मीटर के लिए, क्योंकि वोल्ट मीटर भी आप यूज कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। ये रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। जीरो एरर।
मिला हुआ है बाहर से, तो लेंथ वायर की लेंथ, आपके वायर लेंथ ऑफ रेजिस्टिव वायर, लेंथ ऑफ रेजिस्टिव वायर, ठीक। इसमें आप कर सकते हैं, अगर 1 2 3 कई हैं तो कई का नाम लिख, कई के लिए लेंथ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यही काम कर सकते हैं कि ये कही है तो ये कई का लेंथ लिखिए, लेंथ ले लीजिए। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मतलब मेजर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंश्योर करिए कि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है ना, वायर जो आपने लिया है वो ठीक ठाक लिया है। तो ये वैल्यूज लिखने के बाद क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन टेबल पे बनाना है। तो सर्किट देख लीजिए, सर्किट पहले से ही जोड़ रखिए, और फिर ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन लेते टाइम आपको जरूरी है ये काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सीरियल नंबर ये तो रहेगा, वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक है, वोल्ट मीटर रीडिंग। यहां पर क्या है, अमीटर रीडिंग, अमीटर रीडिंग, ठीक है। आपकी मर्जी, क्या करिए, ऑब्जर्व्ड करेक्टेड, ऑब्जर्व्ड करेक्टेड। देखिए सही तरीका एक्सपेरिमेंट करने का यही सही तरीका है। ये खाना पूरी नहीं करना है, या पहले का आपका जो नॉलेज है उसको अप्लाई नहीं करना है कि आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन आता है वीआई ग्राफ तो हम स्ट्रेट लाके ही तम लेंगे। आपको यहाँ पर जो आ रहा है वही करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, और जो आ रहा है वही करना है, और जो भी आया है वही रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए, सब वही होना चाहिए जो किताब में लिखा हुआ है। किताब में आइडियल कंडीशंस लिखी होती हैं, प्योरेस्ट मटेरियल के लिए लिखा गया होता है सब कुछ, वो स्टैंडर्ड लैब फॉर्म में ये लैब सिचुएशन में पॉसिबल होता है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको समझे, लेकिन आपको यही एनालाइज करने का टाइम मिलेगा, या एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जो कर रहे हैं वो कैसे क्यों वेरी कर रहे हैं, वो भी एक स्टडी का पार्ट है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको अमीटर मिला फॉल्टी है, वोल्ट मीटर मिला वही फॉल्टी है, उसमें कुछ एरर है। तो आपको इसी सब में देखना है कि इन चीज़ों में हम कैसे सही मेजरमेंट ले लें। तो ये सब पार्ट है कि एक फॉल्टी वोल्ट मीटर, फॉल्टी एमीटर की हेल्प से भी हम काम करें, तो ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। कहीं कोई गड़बड़ी आ गई तो उससे आप कैसे ओवरकम करेंगे, ये उसका पार्ट है। तो अब यही करते हैं कि सीरियल नंबर ले लिया, अब ऑब्जर्व, उससे ऑब्जर्व क्या, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेते हैं 15 मिली एम्पियर, आपने पढ़ा 15 मिली एम्पियर, और करंट नहीं जा रही थी तभी वो 10 मिली एम्पियर बता रहा था। तो ऑब्जर्व क्या हुआ 15, और करेक्टेड क्या हुआ फिर 5, क्योंकि 10 का इसमें रहा, 10 ऑलरेडी 10 बता रहा था, तो ये क्या होगा, ये 5, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है, हो सकता है कि वो भी 0.1 वोल्ट पहले से बता रहा था, किसी गड़बड़ी की वजह से उसमें अलाइनमेंट उसका गड़बड़ हो गया था, गिर उड़ गया था जैसे भी। तो यहाँ पर कोई होता है कि आप लिखे 0.3 वोल्ट, 0.1 वोल्ट पहले ही बता रहा था, तो करेक्टेड क्या होगा, ऑब्जर्व्ड 0.3, करेक्टेड क्या हो गया 0.2, ऐसा। तो ये सब करना पड़ता है। तो करेक्टेड के बीच ही ग्राफ खींचना है आपको, जो प्लॉट करना है ग्राफ करेक्टेड के बीच करना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इक्वल्स V/I। तो यहाँ सीरियल नंबर 1 2 ऐसे आप लिखते जाएंगे, और साथ में 3 4 आप बाद में वैल्यूज नोट करते जाएंगे। तो ये होगा। नेक्स्ट वीक आपको क्या करना है, स्लोप ग्राफ प्लॉट करना है। V/I ये तो कोई जरूरी नहीं था, R इक्वल्स V/I यहाँ कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, ग्राफ्स के स्लोप से आप कर सकते हैं। अगर ये VI ग्राफ है, यहाँ पर VI ग्राफ, अगर यहाँ V है यहाँ I है, तो VI ग्राफ कुछ इस तरह है, इसका स्लोप 2 पॉइंट, ग्राफ आपने प्लॉट किया तो मिलेगा, तो पॉसिबल है कि ऐसा मिले। पॉइंट्स कैसे मिले, जरूरी नहीं कि एकदम ठीक ठीक एक ही स्ट्रेट लाइन में कोइंसाइड करें, हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ मिले, एक पॉइंट यहाँ मिले, ऐसे मिले, इस तरह मिले, ऐसा मिले, ऐसे इधर ऐसे मिले, लेकिन आपको है ना एक ही लाइन में पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन ट्रेंड पता चल रहा है कि कुछ ऐसा ही है। ग्राफ का ट्रेंड देखते हैं प्लॉट करने में,
क्योंकि ये प्रैक्टिकल एरर्स मानी जाती हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, आपका अमीटर उसी स्टैंडर्ड का नहीं बना हुआ, आपका वोल्टमीटर गड़बड़ है, आप पढ़ने में कुछ गलती कर रहे हैं, इसलिए तो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। आपका रेजिस्टेंस वायर है, वही डिफरेंट रेंजेस में फ्लक्चुएट कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस वो वेरी कर जा रहा है गर्म होने से, हल्का सा गर्म ठंडा होने से, तो ऐसा है। लेकिन अगर आपने 7 रीडिंग लिया, 10 रीडिंग, 12 रीडिंग ले लिया और इस तरह का दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि सब पे आप मिलाते जाएंगे। क्या करना है, ग्राफ का ट्रेंड पकड़ना है और ये इनके बीच से कुछ पॉइंट लेफ्ट कुछ पॉइंट राइट छूट जाए, छूटने दीजिए, है ना, ये पॉइंट छूट जाए। हो सकता है ग्राफ पर एक भी पॉइंट ना पड़े, लेकिन ट्रेंड देखते हुए बीच में से ड्रा करिए, एवरेज देखते हुए, तो ऐसे होता है। इसलिए ग्राफ अगर यही वैल्यू नहीं निकाल लेते, वी बाई आई ऐसा ही कर लेते, यहीं पर वी बाई आई तो रेजिस्टेंस मालूम हो जाता। लेकिन इसलिए नहीं हर वैल्यू से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि चलिए ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ से जो आएगा वो मिडिल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर स्लोप निकालने का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, और ये क्या हुआ, इतना पोटेंशियल का डिफरेंस, ये पोटेंशियल के डिफरेंस का डिफरेंस है इतना, ये, और इस पोटेंशियल डिफरेंस पर ये करंट थी, इस पोटेंशियल डिफरेंस पर ये करंट थी, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा आई, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा वी, तो आर क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा पहले देख लीजिए। अगर इस एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर करंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो स्लोप क्या हो जाएगा डेल्टा आई बाई डेल्टा वी। लेकिन ये तो एम्पियर अपॉन वोल्ट है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले ग्राफ में रेजिस्टेंस 1 अपॉन स्लोप, ठीक। सो इससे आप फाइंड कर सकते हैं। सो ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, या आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये डिफरेंस अपॉन ये डिफरेंस कर देंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा, स्लोप का रेसिप्रोकल। तो यही तो करना यही है। अब ये जो रेजिस्टेंस आया वो एल लेंथ का था, हो सकता है आपका 100 सेंटीमीटर रहा हो, और रेजिस्टेंस आ गया कुछ 10 आ गया, मान लेते हैं, तो पर सेंटीमीटर कितना हो गया 0.1 ऐसा होगा। तो ये ऐसे रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ही आप प्रिकॉशन पर जाइए कि मेथड्स क्या है, स्टेप्स क्या है, यानी प्रोसीजर को बोलते हैं। प्रोसीजर आपको रिकॉर्ड बुक में लिखना नहीं होता, लेकिन आपको आप जो पढ़ के आते हैं, पहले से पढ़ के आते हैं, ताकि आप एक्सपेरिमेंट के टाइम में कुछ गलती न करें। तो प्रोसीजर भी पढ़ना है, साथ में प्रिकॉशन, पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले प्रिकॉशन। तो वही कहते हैं प्रिकॉशन में क्या है कि आप जो भी कनेक्टिंग वायर लेंगे उसके एंड्स को साफ कर लेंगे पहले ही सैंड पेपर से। पहला काम, बहुत ज़्यादा लेंथ वायर का नहीं होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है वही हो, अदरवाइज वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस आने लगता है। तो लेंथ सुटेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बहुत हाई वोल्ट पर एक्सपेरिमेंट मत करिए कि 10 वोल्ट 12 वोल्ट लगा के कर रहे हैं और करंट देख रहे हैं, उसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, एरर आ सकती है। एक अगली चीज़, कनेक्शन सारे टाइट होने चाहिए बहुत बढ़िया से, और कोई भी रीडिंग देखते हैं तो ठीक सामने से देखिए, ऐसा नहीं कि इस साइड में बगल में वोल्टमीटर रखा है, इधर बगल में मीटर रखा है, तिरछा देख रहे हैं, तो रीडिंग का उसमें आपको क्या आ जाएगा, पर्सनल एरर में आ जाएगा, तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इनका जरूर ध्यान रखिए। तो होप आप समझ गए हैं इसको। हम लोग अब चलते हैं अपरेटस पर, वहाँ पर हम फिर एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि कैसे कैसे कंपोनेंट जुटाने हैं, क्या प्रिकॉशन लेनी है, और साथ में कनेक्शंस कैसे करने हैं, और उसके बाद परफॉर्म कैसे करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सब उसमें साथ में हम लोग करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास जो वार्ड अपरेटस हैं वही हैं हमारे पास। स्विच आपको बताया था, मैं यहाँ पर स्विच नहीं रखा हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं सीधा लिखा भी हुआ है, बैटरी एलिमिनेटर है, इसमें स्विच ऑलरेडी लगा हुआ है। एक तरफ से देखिए इसमें सप्लाई भी हमने दे दिया है बगल से, और ये जो नॉब है यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए आप आउटपुट डीसी करना, डीसी वोल्ट्स 3 एम्पियर मैक्सिमम रेंज है। तो ये भी पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा लो रेजिस्टेंस तो नहीं लगा दें जिससे बहुत ज़्यादा करंट, हाफ एम्पियर का लगा दीजिए, 3 वोल्ट लगा दीजिए, मतलब कि 6 एम्पियर करंट ड्रा करने लगेगा, तो ऐसे में उससे बचना है। तो ये देखिए जो थोड़ा सा
मैरून कलर है या इसको जान कि किसमें रेड होगा, ये कलर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। 3 एम्पियर करंट इसका मैक्सिमम रेंज है, ये जो रेटिंग लिखा हुआ है वही है। डीसी वोल्ट्स हैं और 12 वोल्ट तक के लिए ये सप्लाई डिसाइड किया हुआ है। लेकिन ठीक है, ये तो ऑलरेडी डिज़ाइंड है और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि 4 है तो आपको आपका वोल्ट मीटर 4 ही बताए। तो इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा, देखिए पहले कह दिया कि इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है कि ये जो यहाँ पर मार्क्ड है वही है, हम इसको ले लें। आपको कई मेजरिंग डिवाइसेस को मिलान करके भी आपको देखना पड़ता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिटरमिन करके देखना पड़ता है। जो छपे हुए या लिखे हुए भरोसा आप बदल ना करिए। ये रियोस्टेट है, ये भी क्या है ये देखेंगे तो ये इनामेल्ड वायर इस पर है, बहुत मल्टी टर्न वायर है ये ब्लैक वाला, और ये इस पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ठीक, ये कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट है, ये साइड में टच करता है। और वो कॉन्टैक्ट फिर कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये एक ये वायर यहाँ से मैंने निकाल दिया, जो एक रॉड जो बार है यहाँ ऊपर है ना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, और एक यहाँ पर है। यहाँ से देखेंगे तो ये जो टर्मिनल है, ये जो वायर लगा हुआ वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, किससे, इसी वायर से। ये बहुत बड़ा वायर है, जनरली ये मैंगनीन नाइक्रोम ये सब का वायर होता है जो इस पर वाइंड किए होते हैं। तो जो कैसे पाथ कैसे बनता है कि अगर करंट ऐसे इधर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, करंट है इस वायर में, चार्जेस इधर से आ रहे हैं, ऐसे होते हुए इन टर्न से होते हुए फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें से बाहर जाएंगे। तो अगर इसको यहाँ कर दिया तो क्या होगा, ये चार्जेस यहाँ आएंगे, ये टर्न से होते हुए इसमें से होकर के फिर बाहर निकल आएंगे। तो रास्ते में इनके इतना ही रेजिस्टेंस पड़ा। अगर आप यहाँ इसको शिफ्ट कर देते हैं तो रास्ते में फिर इतना लंबा जो वायर लपेटा गया है इसका रेजिस्टेंस पड़ा। ठीक, ये लैटरली कनेक्टेड नहीं है, ये जो इसके वायर हैं लैटरली कनेक्टेड नहीं है। लग रहा है कि ये वायर चिपके हुए हैं आपस में, तो ये वायर ऐसे चिपके हुए हैं, ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन साइड में उनका कोई कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट नहीं है। फिजिकल कॉन्टैक्ट है लेकिन कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट नहीं है। इनामेल्ड वायर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का क्या हुआ है, इस पर एक इनामल चढ़ाया हुआ है इस पर, तो इसलिए जब भी करंट है पूरे टर्न्स में से होके जाती है। तो ये क्या हो गया आपका, ये रियोस्टेट हो गया। ठीक, ये कनेक्टिंग वायर्स है, बहुत ज़्यादा वायर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ पीसेस हैं ये आप हम लोग यूज़ करेंगे। अभी आपको रेजिस्टेंस वायर जो लगना है, तो रेजिस्टेंस वायर के ऐसे रोल्स आते हैं, ये रोल है और कई क्रॉस सेक्शन के या पतले या मोटे वायर हो सकते हैं। तो ये देखिए बहुत पतला वायर है, ठीक है, ये पतला वायर है और इसकी आप जितनी चाहे मर्जी उतनी लेंथ आप ले सकते हैं। ऑलरेडी लैब्स में ऐसा होता है, जैसे मोटे वायर भी होते हैं उनकी भी आप जितनी चाहे लेंथ ले सकते हैं, तो आपके हाथ में है। ये वोल्ट मीटर देख रहे हैं, 0 से 5 वोल्ट रेंज का ये वोल्ट मीटर है, और ये क्या है, मिली एमीटर है, 0 से 500 मिली एम्पियर का मिली एमीटर है। तो कनेक्शंस कैसे करना है, पहले बताया कि रेजिस्टेंस वायर है, उस पर आप पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्केल आपके पास है और यहाँ पर क्या करिए, ये आप अगर 1 मीटर वायर मान लेते हैं, ले लेते हैं, हमने 1 मीटर ले लिया, 1-2 सेंटीमीटर कनेक्शंस में आने के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद इधर से 2 सेंटीमीटर इधर भी कनेक्शन आने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक, तो वो 1 मीटर वायर यानी 100 सेंटीमीटर वायर आपने ले लिया, और इसको इस वायर को आप कट कर लीजिए इतनी लेंथ में, और फिर ठीक, तो ये वायर, अब इस रेजिस्टेंस वायर को जनरली क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा कॉइल कर लेते हैं। कॉइल करने का मतलब ये इनामेल्ड नहीं, ये वायर जो है ये कांस्टेंटन वायर, मेरे हाथ में जो वायर है कांस्टेंटन वायर है, और ये इनामेल्ड नहीं है, ये पूरी तरह कंडक्टिंग सरफेस का है। तो ये लैटरली अगर ऐसे कनेक्ट हो गया, इस तरह टच कर गया, तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब इतना क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो करंट सीधे क्या हो जाएगी, इधर से जाएगी और ऐसे इधर चली जाएगी, ये वायर रास्ते में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना है, ये अगर ऐसे पूरी लेंथ अगर ठीक ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे टर्मिनल्स में,
तो ये क्या हो जाएगा, कई जगह टच करके गड़बड़ हो सकता है, आपका जो रेजिस्टेंस बदल सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको आप पहले से ही स्पाइरल कर लीजिए। और स्पाइरल करने के लिए कोई भी आप राउंड या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले करके उसमें क्या कर सकते हैं, पहले मेजर कर लिया आपने, और इसको क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से ऐसे ऐसे घुमा करके आप ठीक है। तो इसमें इसकी लेंथ शॉर्ट थोड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, इधर उधर फैलेगा नहीं, और आप बढ़िया से इसको वाइंड करके ठीक। तो ये कुछ इस तरह हो गया, स्प्रिंग जैसा हो गया। अब ये कनेक्ट करने में आपको आराम रहेगा, और कहीं साइड में आपस में वो कनेक्ट भी नहीं होगा। तो कनेक्ट करने से पहले देखिए क्या करते हैं, आपको जो फिगर में भी दिखाया हुआ था, तो आपको पहले दिखाया हुआ था कि आप क्या करिए, जो ये रजिस्टर है यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, इसमें क्या करना है, ये सप्लाई भी जाना है और वोल्ट मीटर भी यहीं कनेक्ट करना है, ठीक। तो ये काम करना है। अब वहाँ पर बोर्ड पर तो हमने क्या किया, यहाँ वहाँ का मिटा के फिर से नया जोड़ दिया, नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर आप उतने फ्री नहीं हैं, तो आप करते क्या है कि ठीक है, वोल्ट मीटर के क्रॉस क्या होना चाहिए, सॉरी, वोल्ट मीटर के क्रॉस क्या होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या लगा हुआ, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर यहाँ निकलेगा और यहाँ एक कनेक्टिंग वायर यहाँ निकलेगा, बाकी चीज़ों में वो जाके जोड़ेगा। तो वोल्ट मीटर और एक कनेक्टिंग वायर यहाँ है ना, देखिए ये वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल और एक कनेक्टिंग वायर यहाँ पर, और वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल एक कनेक्टिंग वायर यहाँ जोड़ दीजिए, तो पहले से ही आपका एक कनेक्शन तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, हमने एक कनेक्टिंग वायर ले लिया और एक वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल, और यहाँ पर देखिए और रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको जोड़ते समय ध्यान रखिए कि बहुत ये अंदर ये इसके सेट हो जाए इसके रॉड में, और क्लॉक इसको आप घुमाएंगे, ऊपर से क्लॉक वाइज दिख रहा है तो कनेक्शन टाइट होना चाहिए, और क्लॉक वाइज टर्न कर रहा है, तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर रखा और क्लॉक वाइज टर्न किया तो बाहर ना निकल जाए। इसलिए इसको रखने का भी तरीका ऐसा ही है कि इसको ऐसे रखिए, क्लॉक वाइज रखिए भी, ताकि घूमने में और वो टाइट हो जाए। तो ये एक एंड हो गया, इस वोल्ट मीटर और वायर, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक वायर हो गया, वोल्ट मीटर का टर्मिनल हो गया, तीनों एक जगह है ना। तो वोल्ट मीटर का टर्मिनल हो गया, एक वायर हो गया, ये एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल हो गया, ये यहाँ पर जुड़ गया। इसके बाद रेजिस्टेंस वायर का दूसरा टर्मिनल, वोल्ट मीटर का दूसरा टर्मिनल, और एक वायर और, ठीक। इसको कहाँ ले जाना है आपको, वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल में यहाँ, और ये ब्लैक है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये निगेटिव टर्मिनल होगा वोल्ट मीटर के लिए, ठीक। तो ये हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया है ना। बुक्स में वो स्ट्रेट ऐसा दिखा होता है, जिगजैग वायर होता है, तो वैसे ही समझिए, इसको रखिए पास में। और ये जो रेड है वो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है, जो ब्लैक है वोल्ट मीटर का नेगेटिव है। तो अब तो हो गया, अब आप बाउंड हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल इस सप्लाई का जोड़ेंगे, और साथ में अब क्या हुआ, ये जो वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस से निकला हुआ एक है, यहाँ एक अमीटर भी आपको चाहिए, मिली अमीटर ऐसा होना चाहिए। तो मिली अमीटर का भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है जो वायर, वो मिली अमीटर के पॉजिटिव में जुड़ेगा, जो सप्लाई के नेगेटिव से आ रहा है, जो नेगेटिव की ओर से आ रहा है वो घूम करके यहाँ आएगा तो नेगेटिव जुड़ेगा। तो अब इसमें नहीं कंफ्यूज होना है कि ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव यहाँ है और अमीटर का नेगेटिव यहाँ है, किधर से टर्मिनल आ रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ है, ये मान लेते की है, की तो ऑलरेडी हमने वहाँ पर लगा रखा है। एक ये रियोस्टेट है, जनरली आप सर्किट में इस तरह बनाते हैं रियोस्टेट, और ये सप्लाई का पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की ओर से होके आ रहा है, तो जो टर्मिनल पहले पड़ेगा वहाँ पॉजिटिव होगा। तो अमीटर का पॉजिटिव कहाँ से, सप्लाई की ओर से या रियोस्टेट से
रास्ते में है वो आएगा तो उसमें पहले पड़ेगा पॉजिटिव, उसी को जोड़ा जाएगा। अब ये पॉजिटिव की ओर से ही आ रहा है, तो चूँकि ये अमीटर है, सॉरी ये अमीटर है, वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो सप्लाई का पॉजिटिव यहाँ आएगा इसके पॉजिटिव में, और इसका निगेटिव निकल के कहाँ जाएगा, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में यहाँ पर ले जा रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर वोल्ट मीटर का पॉजिटिव देने का मतलब पॉजिटिव सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर से आ रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है। तो आइए उसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है, सप्लाई ये है, अमीटर एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर है, ठीक है। इसका रियोस्टेट बीच में, रियोस्टेट का अपना कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, ठीक है, वो कहीं भी कैसे भी जोड़ सकते हैं। ये हो गया एक पार्ट, लेकिन अब सप्लाई के पॉजिटिव से हम ले आ रहे हैं, बीच में रियोस्टेट है, ठीक, वह अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर लें, ठीक है। सप्लाई का पॉजिटिव, अमीटर का पॉजिटिव, ये अमीटर आ गया, तो मिली अमीटर के पॉजिटिव में इसको कनेक्ट कर लिया, तो सब ये हो गया। इसका निगेटिव निकल करके कहाँ जा रहा है, रेजिस्टेंस में, या यूँ कहिए वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर है ये, उसका टर्मिनल है ये, रेजिस्टेंस का भी टर्मिनल इसी में आके मिला हुआ है, तो उससे क्या जुड़ गया आके, अमीटर का निगेटिव, तो अमीटर का निगेटिव यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। वायर को क्लीन किया हुआ है पहले से ही, हमने देखिए थोड़ा शाइनिंग है, ये क्लीन कर रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ जुड़ गया, ठीक। अब क्या रह गया आगे बढ़ाने को, कि जो वोल्ट मीटर का निगेटिव है या रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल है, वो अब घूम कर कहाँ जाएगा, अब कोई कंपोनेंट बाकी नहीं है कनेक्ट करना, सब कनेक्ट कर लिया है, अब सीधे चला जाएगा ये कहाँ पर, बैटरी के या सप्लाई के निगेटिव में। अब ये अमीटर देखिए यहाँ भी हो सकता था, ये यहाँ भी हो सकता था, ये स्विच यहाँ कहीं भी हो सकता था, हाँ, लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के क्रॉस ऐसे ही लगना चाहिए। आप यहाँ भी अमीटर लगा देते तो भी ये काम हो जाता, और यहाँ पर कहीं पर यहाँ लगा देंगे, सीरीज में कहीं होना चाहिए, पाथ में कहीं होना चाहिए, तो जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ होगी, वही करंट यहाँ होगी, पाथ एक ही है, तो सिंगल करंट होगी, सिंगल वैल्यू करंट होगी, एक ही जगह होगी। और रियोस्टेट ये है, अगर इसको आपने यहाँ टच कर रखा है, जैसे ये यहाँ पर जो यहाँ एरो दिखा रहे हैं ना, ये एरो दिखा रहा है, वही कनेक्टर है ना, स्लाइडिंग कनेक्टर, तो सब स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पर फिलहाल है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है पाथ में, ये इसलिए करंट कंट्रोल करता है, रास्ते में रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा देता है। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे, आपके लिए लेफ्ट, मेरे लिए राइट में, अगर ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो रास्ते में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो करंट कम हो जाएगी, तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो V = IR हमेशा ओबे करेगा। आप जैसे भी इसको वेरी करा लीजिए, लेकिन V = IR यहाँ पर ओबे करेगा। तो यही चीज़ें हैं सब। अब हम आ जाते हैं इसमें टेबल में एक, ठीक है, सीरियल नंबर, और देख लीजिए पहले इसमें रेंज क्या है, रेंज पहले बता दिए। मैं समझता हूँ कि इसमें एरर अमीटर में तो नहीं ही है, जीरो एरर, वोल्ट मीटर में नहीं है, तो भी क्या लिखेंगे, टेबल बनाने से पहले लिखेंगे, ठीक है। अमीटर के लिए क्या है, आप लिख क्या रहे हैं, रेंज कितना है, 0 to 500 मिली एम्पियर। लीस्ट काउंट क्या है आपके लिए, ये यहाँ पर कितना है, आप देख लीजिए मीटर के लिए 100 मिली एमीटर में 10 डिवीजन्स हैं, तो 1 डिवीजन में कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। सो 10 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट अमीटर का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वोल्ट मीटर के लिए जीरो एरर क्या है, जीरो एरर है ना, ये हो जाएगा 0, ऐसा हो जाएगा। वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, फिर वोल्ट मीटर के लिए आप वही चीज़ रिपीट करेंगे, क्या है, रेंज, यहाँ पर रेंज क्या है, 0 to 5 वोल्ट, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट देख लीजिए 1 वोल्ट में 10 डिवीजन है, तो 1 डिवीजन कितना रीड करेगा, 0.1 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद जीरो एरर 0 है, सो जीरो एरर क्या है, 0 है।
तो ये सब चीज़ें हैं। और वहाँ पर फिर अगर आप एरर अगर जीरो है तो यहाँ आप कॉलम को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप लिखिए तो कन्वेंशनली थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में कि ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है, वोल्ट मीटर रीडिंग। इसमें ऑब्जर्व्ड और करेक्टेड दोनों एक ही होगा जब जीरो एरर जीरो है तो ऑब्जर्व्ड एंड करेक्टेड ये दोनों वैल्यू सेम है। और मिलीमीटर की रीडिंग है, मिलीमीटर की रीडिंग है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड और करेक्टेड। ठीक है, ऐसा। तो ये वैल्यूज जो आएंगी आप रेडी रहिए कि आपको 5 रीडिंग कम से कम लेनी है और वैसे ही उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो अभी ये हमारे लिए नेगेटिव का कभी कनेक्शन नहीं किया है, ये देखिए। तो ये नेगेटिव टर्मिनल में सप्लाई ये क्या है, कनेक्शंस अच्छे खासे टाइट होने चाहिए, कहीं लूज होगा तो इससे रेजिस्टेंस कनेक्शन का बढ़ जाएगा और इससे दिक्कत आ सकती है। तो अभी ये देखिए 4 5 जो भी आप 4 6 8 कुछ करना है आप कर सकते हैं ज़रूर। तो इसमें भी यहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस, यहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस, ये रियोस्टेट में कुछ रेजिस्टेंस। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जीरो से ही स्टार्ट होगा, पहले से ही कुछ वोल्ट दिखा सकता है और उसके बाद आप घटा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं और देखिए, ठीक लग रहा है कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। जब ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस में ही दिक्कत होगी, है ना। और कनेक्शन में दिक्कत क्या हो सकती है, एक तो रियोस्टेट में कई बार कई जगह वो डिस्कनेक्ट रहता है या, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये देखिए अभी क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, कितना 1 वोल्ट शो कर रहा है। और हमने हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है जो वेरी करने के लिए है रियोस्टेट के थ्रू वोल्ट, वो हम शुरुआत में है। अगर हम इसको हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, या इस समय मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट ऑफर कर सकता है वो लगाया हुआ है। इसके बाद अगर इसको हम अगर अपनी ओर हम अपने लेफ्ट ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वोल्ट और करंट दोनों बढ़ने चाहिए। ठीक है, देखिए ये वेरी कर रहा है और ऐसे। तो ये वैल्यूज़ क्या करनी है, आपको नोट करते जानी है, ऐसे, है ना, ऐसे। तो इसी में ये पूरा वेरिएशन, हमारा जो रेंज ऑफ वेरिएशन है वो यही दिखा रहा है। तो हम बस इन वैल्यूज़ को नोट करना है। ठीक है, तो नोट करें। तो ये नोट कर रहे हैं ये वैल्यूज़ को। तो आप इधर से ये चलिए, ये जो आपको ठीक है 1 वोल्ट है, तो ये 1 वोल्ट अगर वहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये 100 मिली एम्पियर करंट, ठीक है ना, 1 वोल्ट यही ऑब्जर्व्ड है और यही करेक्टेड है। ठीक, और हम इंक्रीज करते हैं वोल्ट को, चलिए मान लेते हैं हम 0.5 का ही डिफरेंस दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कम, हाँ ठीक है। सो 1.5 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो करंट क्या हो गया, 150 मिली एम्पियर है। और ये अगर हमने इसको देखिए, ये कहीं जहाँ भी लूज कांटेक्ट या जहाँ कुछ चेंज हुआ वहाँ तुरंत क्या होगा, ये आपको फ्लक्चुएशन कुछ शो करेगा। तो जैसे ये 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया तो 190 मिली एम्पियर शो कर रहा है। ठीक है, 190 मिली एम्पियर। और अगर ये अभी भी थोड़ा सा 2 एग्जैक्ट नहीं था भाई, थोड़ा सा डिफरेंस था, 200 हो गया है ना, 2 वोल्ट और 200 मिली एम्पियर ये है। और इससे हम ऊपर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अभी कहीं लूज कनेक्शन हुआ तुरंत वो वापस चला गया। तो अब ऐसे ही ये क्या होगा, ये हाँ
अब मैंने इसको हाथ से प्रेस कर रखा है, तब देखिए कॉन्टैक्ट अच्छा हो रहा है, अदरवाइज ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो हम इसको, ये जो स्लाइडिंग कनेक्टर है वहाँ पर ये दिक्कत है, तो इसलिए मैंने उसको प्रेस कर दिया ऐसे, ठीक है। तब ये देखिए अभी ये ठीक है। तो 250 यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा है थोड़ा सा। 2.5 ठीक है, 2.5 है, 2.5 और यहाँ 250। अब यहाँ देखिए यही चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट्स में, यही मालूम होता है कि थोड़ा भी लूज कनेक्शन घटने या बढ़ने या थोड़ा होने से रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाता है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि अगर ये 250 यहीं पर 250 ही अप्लाई किया हुआ, उसके बाद भी क्या हो रहा है, देखिए ये फ्लक्चुएशन आ रहा है और 300 ये बताने लग रहा है, 290 मिली एम्पियर करंट है। और अगर वोल्ट ये कितना है, 250 है, ठीक है ना, 250 है, 250 है तो ये 290, ठीक है ना, 280 बता रहा है, 280, 2.5 है वहाँ, 2.5 वोल्ट, और ये क्या बता रहा है, 280 ऐसा, ठीक है। और ये फिर और आ जाते हैं यहाँ पर 3 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, 340, है ना। तो ये वेरिएशन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ना कुछ, तो ये हम एक प्रिकॉशन ले सकते थे कि लगातार बहुत हाई करंट ना पास करें, बीच में जैसे 2 रीडिंग हो गई तो क्या कर सकते थे, इसको बंद कर दिया। अभी हम बंद करके देखिए, फिर इसको ऑफ कर दिया, अगर ऑफ करके फिर ऑन करेंगे तो यही 3 वोल्ट पर हो सकता है कि कुछ अलग करंट ये शो करे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस वायर जिसको मैं हाथ में पकड़ा हूँ, ये क्या हो रहा है, हल्का सा गर्म भी हो गया है, ये करंट जा रही है, और करंट कोई 300 मिली एम्पियर करंट कोई बहुत कम करंट नहीं है। आपका 100 वाट का जो फिलामेंट लैंप है उसमें 0.44 एम्पियर करंट जाती है, फ्लो करती है, यानी कि हाफ एम्पियर से भी कम। तो 0.44 और यहाँ 0.3, तो सोच लीजिए कंपेरेबल करंट है, और उतनी करंट इसमें जाएगी तो निश्चित है हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अब वो कॉन्टैक्ट में चेंजेस आए, चाहे इधर के चेंजेस कुछ दूसरे आ जाए। तो आइए फिर एक बार हम इस पर ऑन करके देखते हैं इसी को। देखिए 3 वोल्ट, और यहाँ क्या है, 330 है ना, तो 330 इस बार आ रहा है। तो ठीक है, हमने मान लो 340 पिछली बार आया और 340 अभी है। तो ये वैल्यूज़ हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर के VI ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उसके बाद जैसे बताया उसका स्लोप कैलकुलेट करिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए स्लोप से, और उसके बाद लेंथ 100 सेंटीमीटर है, उससे जो भी रेजिस्टेंस आता है स्लोप का रेसिप्रोकल ही रेजिस्टेंस होगा, तो जो आता है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू आपको वापस में आपको मिल जाएगी रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, बंद कर दीजिए। इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेटर करके दिखा देते हैं, है ना। तो ये देखिए अभी अब एक ऑब्जर्वेशन, जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल था उसमें जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और वैसे ही वैल्यू देख करके आप गेस कर सकते हैं कि हाँ 1 वोल्ट आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। उसी सेटअप के लिए, उसी वायर के लिए 1.5 वोल्ट आपने अप्लाई कर दिया तो 150 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, मीन्स 1.5 टाइम्स कर दिया तो करंट भी 1.5 टाइम्स हो गई, यानी प्रोपोर्शनलिटी को ओबे कर रही। 2 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया तो 200 मिली एम्पियर हो गया। 2.5 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो वहाँ 280 दिखा रहा है। अब ये सेटअप यहाँ पर जो वेरिएशन आया है ये मे भी किसी कारण हो सकता है, कहीं लूज या टाइट या कोई कनेक्शन जहाँ पर कांटेक्ट पहले बढ़िया हो रहा था या नहीं हो रहा था, या कहिए कि पहले ही बढ़िया नहीं हो रहा था अब बढ़िया हो रहा है तो करंट बढ़ गई। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। तो ठीक है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे ये ऑब्जर्वेशन जो बाद में दोनों आए हैं वो थोड़ा डेविएट कर रहे हैं। जो पहले 3 ऑब्जर्वेशंस हैं वो
एक प्रोपोर्शन में है और बाद वाले दो हैं थोड़ा प्रोपोर्शन से थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं। फिर भी हमने वो तीन को एक ग्राफ, देखिए ये ग्राफ प्लॉट किया है उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, ये वोल्ट में होगा। इस वर्टिकल एक्सिस पर आप क्या कर लिया, ये करंट ले लिया और ये मिली एम्पियर में है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं 1 सेंटीमीटर यहाँ जो करंट एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो 50 मिली एम्पियर को, वोल्टेज एक्सिस पर यानी पोटेंशियल डिफरेंस वाले एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5 वोल्ट को। तो इन्हीं स्केल पर ड्रॉ कर लिया गया। तो ये ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है जब वो तब है जबकि बाद वाले जो दोनों रीडिंग्स हैं हमने उनको अवॉइड किया है। अब इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है या इससे और करेक्ट करने का क्या उपाय हो सकता है कि अभी डाउट है थोड़ा कि 3 रीडिंग्स हो गए किसके एक जैसे और 2 अलग हैं, तो ऐसे डाउट्स को और कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको कई और रीडिंग लेनी चाहिए। आमने से हम यहाँ पर क्या किया था 2.5 वोल्ट है तो आप 2.3 पर ले लीजिए, 2.7 पर ले लीजिए, 2.6 पर ले लीजिए। 3 है तो उस पर भी कुछ अगल बगल उसके आप 3.1, 3.2 ऐसे पर भी रीडिंग ले लीजिए। तो ऐसे में ये थोड़े और पॉइंट्स मिल जाएंगे तो फिर आपको जज करना आसान होगा कि कैसे वेरिएशन होना चाहिए या ट्रेंड कैसा है। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट का एक मेथड जो कि मुझे कन्वे करना है तो इसलिए मैं यहीं पर अभी अपने को लिमिट कर रहा हूँ कि ठीक है ऐसा ग्राफ आ गया। इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, अभी ये 2 पॉइंट ले लिए यहाँ पर ग्राफ पर, मान लीजिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है और इन पॉइंट की हेल्प से स्लोप कैलकुलेट कर लिया। और ये स्लोप देखिए क्या आ रहा है, करंट डिवाइड बाय वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डिफरेंस क्या आ गया, ए और बी पॉइंट्स के करस्पॉन्डेंस में ले रहे हैं हम, तो करंट का डिफरेंस क्या आ गया, कितना आ गया 200 मिली एम्पियर। देखिए 50 50 50 50 200 मिली एम्पियर हो गया। यहाँ पर 0.5 वोल्ट 0.5 वोल्ट 0.5 वोल्ट 0.5 वोल्ट, ये क्या हो गया 2 वोल्ट हो गया। उनका जो रेशियो आया आपका देख लीजिए ये 0.1 आ गया। तो 0.1 ये 1 ओम होगा क्योंकि एम्पियर अपॉन वोल्ट है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसी स्लोप का रेसिप्रोकल होगा। तो 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया आपके किस वायर का, जो वायर आपको 1 मीटर दिया हुआ था। तो लेंथ ऑफ वायर आपको 1 मीटर था यानी 100 सेंटीमीटर था। तो ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। ठीक, तो ये ये 10 ओम अपॉन 100 सेंटीमीटर, ये आपको 0.1 ओम पर सेंटीमीटर ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये आपका रिजल्ट है। तो अब फाइनली आप लिखेंगे रिजल्ट कि इतना रिजल्ट हुआ। अब इसमें और क्या आप ऐड कर सकते थे, इसी वायर का अलग लेंथ का पीस, एक मान लीजिए 0.5 मीटर का 1.5 मीटर का ऐसा पीस लेकर के वहाँ से भी, भाई वायर वही है तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर वही होना चाहिए। तो उसके अराउंड क्या देख लेंगे क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। तो फिर एक वैल्यू तो ये हो गया, दूसरी वैल्यू दूसरे वायर के लिए, तीसरी वैल्यू तीसरे वायर के लिए ले लेंगे। अगर डिफरेंट आता है तीनों का मीन ले लेंगे तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। यही पहला एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिंपल है। इसको आपने 10th में किया है, थोड़ा पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो यही बस डिवीजन करना था और वायर का लेंथ लेना था, बाकी आपको कुछ उसमें नया नहीं करना था। तो ठीक है, ये कंप्लीट हुआ और समझते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से पूरी तरह देखिएगा। अगर जब भी अगर कुछ डाउट होगा तो फिर रिवर्स आके देखिएगा। और ठीक है, तो हो गया कंप्लीट। आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिए दूसरे को, खुद देखिए और फाइनली अगले प्रैक्टिकल के लिए, अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए इस पर। थैंक यू वेरी मच।